بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ منزل کتنی دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا، اور اگر پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی مطلب پورا ہو جائے گا وہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ غم میں تنہا ہے اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں ویران کنووں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جن کے چہرے چاند کی طرح ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اکثر داغ ہوتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جیسے وہ اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پر بھی ٹانگ دے تب بھی اطمینان رکھیے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، کیونکہ رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن وہیں ایک بیوقوف انسان اس دنیا میں ہر بات جانتا ہے۔ انسان کا برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ ہم واقعی اندھے تھے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ ان باتوں کو کبھی مت بھولنا، اپنی موت کو، اللہ کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے وعدے کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، صلح رحمی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی
मायूस नहीं लौटाता। इतनी बुराइयों के बाद भी अगर ये उम्मत कायम है तो सिर्फ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, फिर देखना बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। नेमत की बगावत करना ज़वाल का आगाज है और इस्तग़फ़ार का सफ़र शुरू करना उरूज का आगाज है। या अल्लाह, मगरूर करने वाला माल ना दे और मायूस करने वाली गरीबी ना दे। बाज दफा दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। रिश्ते होते हैं मोतियों की तरह, इसलिए अगर कोई गिर भी जाए तो उसे झुककर उठा लेना चाहिए। इंसान अपनी जिंदगी में गुजरता हुआ वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन उस गुजरे हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है। वालिदैन की दी गई हुई आज़ादी आपके पास एक अमानत है, इसलिए उसमें कभी खयानत मत कीजिएगा। कुछ खास लोग ही वजाए जिंदगी होते हैं जिनके बगैर भरी दुनिया खाली लगती है। इस दुनिया में वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ से निभाने की चाहत हो। फिक्र ना करो, लोग भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह नहीं भूलता, ना तो आपकी नेकी को ना लोगों की जाती को। बात सिर्फ एहसास की है और ये एहसास किसी को तो 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। किसी के दिल से गुजरना कमाल नहीं, कमाल ये है कि उसमें ठहर जाना। अगर अमीर हो जाओ तो मगरूर मत हो जाना और वहीं अगर गरीब हो जाओ तो मायूस मत हो जाना। इस दुनिया में दुख सिर्फ उसे होता है जो किसी भी रिश्ते में मुखलिस हो जाता है। आपके बारे में 10% जानने वाला दूसरों को 100% बता रहा होता है। इज्जत और तारीफ लोगों से मांगी नहीं जाती, बल्कि इसे अल्लाह की ज़ात देती है। इखलाक ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मिजाज को बद इखलाक ना होने दिया जाए। इस दुनिया में इल्म यह है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत यह है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। अपनी तालीम को कभी भी अपनी जहानत से ना उलझाएं, क्योंकि आप आला तालीम हासिल होने के बाद भी आप आला दर्जे के जाहिल हो सकते हैं। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, बल्कि तल्ख हकीकतों में आंखें खोलनी पड़ती हैं। और जब अल्लाह देने पे आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। शिकवा शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री जबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। जिंदगी की किताब में हर सफ़ा सबक है, पर हम सीखते नहीं। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, क्योंकि उसके आखिरत के बारे में सोचना आपका उस शख्स के लिए मोहब्बत की पहली दलील है। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। अल्लाह के कामों में ना जल्दी होती है और ना ही देरी, बल्कि सही वक्त पर अल्लाह के काम पूरे हो जाते हैं। उस इंसान की हमेशा दिल से कदर करना जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको अपना वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौटकर नहीं आ सकता।
अहमक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए अपने दोस्त को दुश्मन बना ले। इस दुनिया में धोखा देकर कोई भी नहीं बचता, क्योंकि इंसान के दिल से निकली एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्लीस नहीं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे नेक ना बनिए कि आपको हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलते हैं, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। खुशी का हो या गम का हो, इस दुनिया में सजदे की तौफीक मिलना ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन हाय अफसोस, इंसान दूसरों का दर्द नहीं समझता। जब दूसरों का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए तो अपने वक्त की खुद ही कद्र कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। अगर तनकीद ही करनी है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर को जगा देता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है, लेकिन उसे अपना गिरबान नजर नहीं आता। तूफान में कश्तियां और गुरूर में अक्सर हस्तियां डूब जाती हैं। लफ्ज़ों की भी उम्र होती है, जो कहने वाले को नहीं बल्कि सिर्फ सुनने वाले को ही याद रहती है। इस दुनिया में झूठ इसलिए भी बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। इस दुनिया में अगर जेब भरी हो तो दुश्मन भी खता माफ कर देता है, और अगर हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। जब आप अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र करने लग जाएं, तो समझ लें जलालत आपसे एक कदम की दूरी पर खड़ी है। खामोशियां जो सुनना सीख लेते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वो किसी को नहीं मिलते। अगर इस दुनिया में दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगती है तो समझो आप गिरे हुए इंसान हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच्चे हों तो सबसे पहले कि आप नींद से जाग जाएं। अपनी निगाहें सितारों पर रखो, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर हमेशा जमीन पर हों। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता, उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है। एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से कहा कि मुझे नसीहत करिए, तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। मेरा अल्लाह देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। इस दुनिया में माँ की दुआ आपको कभी बदनसीब नहीं होने देती, वहीं बाप की दुआ आपको कभी गरीब नहीं होने देती। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, फिर देखना वो तुम्हारा वक्त ही बदल देगा। जिंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से शर्म करो जैसे कि तुम अपने खानदान के नेक और शरीफ आदमी से शर्म करते हो। इस दुनिया में लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़
मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करना तुम्हें गुनाहों से बचाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान को रुखसत करते वक्त दरवाजे तक छोड़ना सुन्नत है। हजरत अली ने फरमाया कि तुम अपनी अकल के जरिए अपनी ख्वाहिश नफ्स का मुकाबला करो। अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज की इयादत करने वाला घर वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने के लिए आती हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखे खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर, क्योंकि जो होगा वो होकर ही रहेगा। इसलिए तू कल की फिक्र में अपनी आज ना बर्बाद कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुमे की नमाज है। खाना इकट्ठा खाया करो, क्योंकि बरकत जमात के साथ होती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। और इबादत से जन्नत मिलती है, लेकिन वहीं खिदमत से खुदा मिलता है। इस दुनिया में किसी को गुलाब पसंद होता है और किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें कसूर गुलाब का नहीं बल्कि फर्क मिजाजों का है। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा तो होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयाँ ना देनी पड़े। जिन घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद और जिसके घर में रात देर तक जागा जाए और सुबह देर तक उठने का रिवाज हो, तो ऐसे घर में रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रज़ा का तालिब हुआ, तो वो शख्स गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा कि जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। इस दुनिया में जो अपना गुस्सा रोकेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपना अजाब उस पर रोक देगा। हमेशा मीठा बोल बोलो, ताकि अगर कभी वापस लेना पड़ जाए तो कड़वा ना लगे। सब्र रख ए इंसान, क्योंकि कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। आया खाली रहा खाली, गया खाली, हाय रे इंसान तेरी खस्ता हाली। इस दुनिया में रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। इस दुनिया में किसी को भी इतना हक मत दो कि वो तुम्हें छोटा महसूस करे। इस दुनिया में मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। इस दुनिया में बादशाह तो वक्त होता है और बाकी सब तो यूं ही गुरूर करते हैं। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी उस दुनिया में ही रहते हैं। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमाल से नहीं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। न जाने वो पत्थर कहाँ से मिलता है जो दिल पे रख कर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इस दुनिया में मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इस दुनिया में लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो।
तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हज़रत अली ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिनने नहीं देती, वही ज़ात इंसान को कैसे बेयार और मददगार छोड़ सकती है। अपना सिर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चल सके कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। इस दुनिया में रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। जहाँ छोटों की ज़बान बड़ी हो जाए वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। इस दुनिया में समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किस अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर मान, भरोसा, एहतराम और आदाब का पर्दा डालें। इस दुनिया में मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। इस दुनिया में कौन, कब, किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त बताता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाने में आपको सोने की प्लेट और चांदी के चमचे में ही क्यों ना दिया जाता हो। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है, क्योंकि सजदा ज़मीन पर होता है लेकिन दुआएं आसमान तक जाती हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में देता है, और उसमें कभी खयानत मत करना। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। इस दुनिया में साफ साफ बोलने वाला कड़वा ज़रूर होता है, पर धोखेबाज नहीं होता। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। बच्चे बड़े होकर समझ जाते हैं कि अब्बा की पाबंदियां ठीक थीं, और वहीं बंदा मरने के बाद समझ जाता है कि उसके रब की पाबंदियां ठीक थीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और वहीं दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी नीयत से जानता है। इस दुनिया में 3 रिश्ते हमेशा बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, और गुर्बत में बीवियां। इस दुनिया में जो शख्स सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को पसंद करता है वो हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में खामोशी हमेशा रजामंदी या नाराज़गी ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि हमने नासमझों के लिए वजाहत की सख्ती नहीं रही। इस दुनिया में देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कभी ना मिलाता। तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो दिन तुम्हारा बिना नेकियों के गुजर जाए। कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, फिर देखना तुम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाओगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि वक्त बदलेगा और हालात भी बदलेंगे। किसी ने मौलाना रूम से पूछा कि दुनिया क्या है, तो मौलाना रूम ने फरमाया, वो हर चीज़ दुनिया है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी
सबसे बुरा लगने लगता है। इंसान कीचड़ में गिरने से इतना गंदा नहीं होता जितना गंदा बद अखलाकी से हो जाता है। इस दुनिया में बुरे मकसद की कामयाबी से अच्छे मकसद की नाकामी बेहतर है। इस दुनिया में वो आदमी जिसके लिए दुनिया में रहना और जाना दोनों बराबर होता है, वो मोमिन कहलाता है। दोस्त वो है जो गम को कम कर दे और खुशी को बढ़ा दे। मोहसिन के साथ बेवफाई करने वाला बर्बाद हो जाता है। दुश्मनों पर काबू पा लो तो उसे मज़ीद तंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सज़ा है। जो शख्स अपनी नफ्स को दुरुस्त नहीं करता, वो बुरी आदतों के हाथों जलील और रुस्वा होकर रहता है। अकल अपने काम पर और जहालत अपनी उम्मीदों पर भरोसा करती है, क्योंकि अकल कमाल चाहती है और जहालत माल चाहती है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए, वही मकाम इंसान के लिए जन्नत है। इस दुनिया में यकीन ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हम रिज़्क़ देने वाले हैं। जब आपको ये यकीन आ जाए कि रिज़्क़ देने वाला वो है, तो वो आपके यकीन को कभी टूटने नहीं देता। जिस शख्स को उसने पैदा होने से पहले इस्लाम दे दिया, अब उसके साथ अल्लाह ने क्या करना है, क्योंकि अल्लाह तो हम पर पहले ही फजल कर चुका है। एक बच्चे ने दूसरे को गाली दी तो दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा जान मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे डरता हूँ, और यही हक हमारे ऊपर हमारे अल्लाह का है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है कि मेरे अमल की कोताही मुझे उसके फजल से महरूम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अता मेरी खता से बहुत वसी है। दुआ ये करो कि अल्लाह जो तूने देना है वो बग़ैर मांगे दे दे, और जो कुछ तूने नहीं देना और उसको मांगने की तौफीक ना दे। हज़रत अली से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर हमारा इरादा नहीं। अगर कहीं ये शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह के करीब है, तो उस शख्स के करीब हो जाओ। इस दुनिया में सब्र करने वाला वो होता है जो जलाली आदमी के साथ गुजारा करे। नस्लें संवर जाती हैं जब कोई कुरान पाक को समझकर पढ़ना शुरू करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले राब्ता कम कर देते हैं। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हम मुसलमानों में हर मुसलमान ईमान पर मरना चाहता है, लेकिन ईमान पर जीना कोई नहीं चाहता। अल्लाह चाहे तो एक पल में कर ले कबूल, मगर ये देरी तुम्हारी हिफाजत की इंतज़ामात हैं। कभी कभी हम और अल्लाह जानता है कि हम पर क्या बीत रही होती है। ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है, और कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। ये तो रहमान की रहमत को गवारा ही नहीं कि वो तुम्हें तारीकी में भटकता छोड़ दें।